So hello everyone. So we are going to study the chapter human population and environmental problems. All right. So let's move further. So these are the topics to be covered. What is human population? What is human population growth? Factors responsible for the high population growth. ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वी विल कवर इट. मतलब कि ह्यूमन पॉपुलेशन क्या होती है, उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, देन कैसे कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशन, वेलफेयर प्रोग्राम्स, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट, एंड देन द रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन वाला टॉपिक हम कवर करेंगे. उसके बाद आएंगे कुछ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स. देन वी हैव आवर NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ओके, and then environmental ethics, then we have environmental problem and its solutions. ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ह्यूमन पॉपुलेशन? सो पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द इंडिविजुअल्स belonging to same species which in line given area and given time. नाउ पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन को अगर डिफ़ाइन करने को आ जाए तो आप क्या डिफ़ाइन करेंगे? जल्दी बताओ, पॉपुलेशन कैसे डिफ़ाइन होगी? तो पॉपुलेशन को हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ गिवन एरिया. सो देखो, पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज विच इन अ लाइन इन अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम. सो पॉपुलेशन एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो बिलोंग करता है सेम स्पीशीज़ को, which line in a given area in a given time. Now the study of the population change is known as population dynamics. Alright. Next, the change in the population per unit area at a particular time is called population growth. So change in the population per unit area at a particular time is a population growth. Now what is population density? कुछ terms देख लीजिए. Population density, it is the number of individual per unit area per unit volume of the environment. Population density is the number of individual per unit area per unit volume of the environment. Now the maximum population size indefinitely supported by available resources is known as carrying capacity. ठीक है. सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? पॉपुलेशन क्या होती है? ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का जो बिलोंग करता है सेम स्पीशीज़ को, विच लाइन इन अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम. नाउ द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन चेंज इज द पॉपुलेशन डायनामिक्स. Change in the population per unit area at a particular time. Change in the population in per unit area at a particular time is a population growth. Population density is number of individual per unit area per unit volume of the environment. And maximum population size indefinitely supported by available resources is carrying capacity. So this is human population growth. देखिए, सो अब जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है. बेस्ड ऑन जो ह्यूमन की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है बेस्ड ऑन द बर्थ एंड द डेथ रेट. तो अगर बर्थ रेट हमारा ज़्यादा होगा डेथ रेट से, तो जाहिर सी बात है हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी. और अभी आप करेंटली अगर आप देखेंगे ना, तो 7.7 बिलियन पीपल हैं कम से कम. ठीक है, देखो ये ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में. सो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन. ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ अमाउंट्स टू अराउंड 83 मिलियन एनुअली और 1.1% पर ईयर. The fundamental cause of acceleration of growth rate for humans in past 200 years has been reduced death rate due to changes in public health and sanitation.
Clean drinking water and proper disposal sewage has drastically improved health in developed nations. Also, medical innovations such as use of antibiotics and vaccines have decreased the ability of infectious disease to limit human population growth. In past, diseases such as bubonic plague of the 14th century killed 30 to 60% of Europe's population and reduced overall world population by as many as 100 million people. Naturally, infectious disease continues to have an impact on human population growth, especially in poor nations. ठीक है. So for example, life expectancy in sub-Saharan Africa increasing from 1950 to 1990 began to decline after 1985 as a result of HVC aid mortality. So reduction in life expectancy caused by HIV AIDS was estimated to be 7 years for 2005. बेसिकली क्या होता है कि ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का है थोड़ा बहुत ये सेंसस यहाँ पे बता रखा है और ये जो है इफ़ेक्ट करता है. जैसे सब सहारन एरिया में लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कर रखी थी 1950 से 1990 में वो इंक्रीज़ भी हुई, बट 1985 में सडन डिक्रीज़ हो गया ड्यू टू द HVC एंड एड मोर्टालिटी. ओके, next we see to human population and environment. Human population and explosive growth, human needs but limited resources, a natural environment under attack, an uncertain future. Factors responsible for the high population growth is increase in agricultural output, decrease in death rate, increase in agricultural output, decrease in death rate and infant mortality rate, surplus of resources with scientific innovation, illiteracy and lack of awareness. तो ये 4 कारण है: इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट, डिक्रीज इन डेथ रेट, सरप्लस ऑफ रिसोर्सेज, इलिटरेसी. इन 4 वजह से जो हमारा पॉपुलेशन है वो बहुत राइज हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, इम्पैक्ट क्या है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का, क्या क्या इम्पैक्ट है, लेट्स सी दैट. ओके, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट है. नंबर 1 इज डिफॉरेस्टेशन. भाई पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन भी होता है, अंडरस्टैंड वाली बात है. फिर बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा. अर्बनाइजेशन भी रैपिडली बढ़ेगी बट पुअर सैनिटरी फैसिलिटी होगी और पानी की भी कमी हो जाएगी. देन इंडस्ट्रियलाइजेशन विल इंक्रीज डेफिनेटली. लैंड का डिग्रेडेशन होगा. हाई वेस्ट जनरेशन होगा. भाई लोग हो गए तो वेस्ट का जनरेशन भी ज़्यादा होगा. फ्रेश वाटर रिसोर्स जैसे ग्राउंड वाटर ये भी कम होगा. पॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ जाएगा. जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा व्हीकल, पॉल्यूशन उतना ज़्यादा. क्लाइमेट चेंज जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सब होगा. और प्रोडक्टिविटी का तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा ही होगा. ठीक है. तो भाई डिफॉरेस्टेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, पुअर सैनिटरी फैसिलिटी होंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैंड डिग्रेडेशन, हाई वेस्ट जनरेशन, लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स, मोर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी. अब अगर इस पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो जैसे कुछ हमें चीज़ें जैसे हम कर सकते हैं. मैरिज की एक प्रॉपर एज डिसाइड होनी चाहिए. मतलब बिलो एज जब मैरिज हो जाती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ को एनहांसमेंट मिलती है. फिर एजुकेशन अच्छी नहीं होती है तो एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए. और एम्प्लॉयमेंट सबसे पहला तो एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा होना चाहिए. देन फैमिली प्लानिंग एक प्रॉपर होनी चाहिए और कुछ इंसेंटिव्स भी होने चाहिए. राइट. सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वेलफेयर प्रोग्राम्स. सो वेलफेयर प्रोग्राम्स का फटाफट पढ़ लेते हैं. वुमेन कंस्टिट्यूट 48% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन कंट्री एंड दे सफ़र मैनी डिसएडवांटेजेस एज कम्पेयर टू मैन इन लिटरेसी रेट, लेबर पार्टिसिपेशन रेट एंड द अर्निंग्स. So development of women have been receiving the attention of Government of India from first plan
and it was the name was Subject as Welfare. Now, which clubbed together with welfare of disadvantaged group like destitute, disabled, aged. In 1953, Central Social Welfare Board was set up, which acts as an apex body at the center to promote voluntary action at various levels, especially at grassroots, to take up the welfare activities for women and children. The directive principle of state policy, enriched in Part 4 of Indian Constitution, reflect India is a welfare state. Now basically, the Ministry of Women and Child Development, a branch of Government of India, is an women and child welfare coordination of activities, other ministry and organization in connection with subject. So it offers to stabilize self-help groups, to conduct awareness program among rural and urban women. Government of India launched many welfare programs for holistic development of country, such as Antyodaya Ann Yojana, National Gramin Awas Mission, Bharat Nirman. All these are programs to alleviate the poverty and generate the employment so that economy can grow in this competitive world. तो ये कुछ स्कीम्स के नाम है: अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल ग्रामीण आवास योजना, राइट, भारत निर्माण. ओके, सो मूविंग फर्दर टू द कार्बन फुटप्रिंट. कार्बन फुटप्रिंट की क्या डिफाइन है? कार्बन फुटप्रिंट इज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, मेनली द कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. सो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी. ओके, लेट्स टॉक मोर अबाउट इट. सो carbon footprint is the amount of carbon dioxide released into atmosphere as the result of activities like individual, organizational, of committee. Now, what are the causes of the carbon footprint? Is the amount of carbon, ये हमें पता चल गया. So it's an important component of ecological footprint, and carbon emissions from burning fossil fuel accumulate in atmosphere, and if there is not enough biocapacity dedicated to absorb these emissions, so when the carbon footprint is reported within the context of total ecological footprint, the tons of carbon dioxide emissions are expressed as amount of productive land area required to sequester those carbon dioxide emissions, and this tells us how much biocapacity is necessary to neutralize the emissions from burning fossil fuel. So ये देखो, ये वाली लाइन लिख लीजिए कि the tons of the carbon dioxide emissions are expressed as the amount of productive land area required to sequester these carbon dioxide emissions. This tells us how much biocapacity is necessary to neutralize the emissions from burning fossil fuels. Now, how to reduce your carbon footprint from driving? ओके, ड्राइविंग से कैसे हम कम कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट को? सो ऑल द व्हीकल्स आर एस्टिमेटेड एज माइल्स पर गैलन रेटिंग. इलेक्ट्रिक कार्स emit the carbon dioxide, no carbon, electric cars emit no carbon dioxide if they are charged with clean electricity. So driving style, speeding and unnecessary acceleration reduce up to 33% waste gas money and increase your carbon footprint, है ना. बेसिकली रिड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई कार्बन फुटप्रिंट को? इंस्टेंट वेस्ट, स्टॉप ईटिंग, ईट लेस मीट, सिंगल मोस्ट इफेक्टिव action you can combat climate change is to stop eating meat, unplug your devices, drive less, don't buy fast fashion, plant a garden, eat local and organic, line dry your clothes. ठीक है. एंड देखो, मतलब बेसिकली एक तो इलेक्ट्रिक कार्स परचेज करनी है, मतलब इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यू कैन से use of electric vehicles, right? Then don't buy
fast fashion, plant a garden. 1 point, 2 point, 3 point. Eat local and organic. 4th point, line dry your clothes. ये 5 पॉइंट बस आप याद कर लो ऐसे, ठीक है. Let's talk about carbon credit. So carbon credit is a tradable permit or a certificate that provides the holder of credit the right to emit 1 ton of carbon dioxide or an equivalent of another greenhouse gas. Main goal of the creation of carbon credit is reduction of emission of carbon dioxide and other greenhouse gas from industrial activities, and this is to reduce the global warming. Now, government are the some types of regulatory authorities that set up the caps on greenhouse gas emission. For some companies, immediate reduction of emission is not economically viable, so they can purchase additional carbon credit to compile the emission cap from companies that can reduce emission immediately. Companies that achieve the carbon offsets are usually rewarded with additional carbon credit, and sale of credit surplus may be used to subsidize future projects for reduction of emission. So जैसे इकोनॉमिक्स में होता है ना ट्रेडेबल परमिट्स, वैसे ही कार्बन क्रेडिट. तो कार्बन क्रेडिट एक ट्रेडेबल परमिट ही है, ठीक है. ये आप एक तो ये वाली बात याद कर लो. ट्रेडेबल परमिट और सर्टिफिकेट दैट प्रोवाइड्स द होल्डर ऑफ क्रेडिट the right to emit 1 ton of carbon dioxide or an equivalent another greenhouse effect. The aim is to reduce the effect of global warming. See, अगर कोई immediate reduction नहीं कर सकता so वो purchase कर ले additional carbon credit to comply with emission cap from company that can reduce it immediately. So companies that achieve the carbon offset are usually rewarded with additional carbon credit, and this credit surplus may use to subsidize the future project of the reduction of emission. ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए. Okay. Now we are going to move on resettlement and rehabilitation. इस टॉपिक पे बढ़ते हैं हम, resettlement and rehabilitation. Okay. So moving towards resettlement and rehabilitation, development projects that displace people involuntarily generally give rise to severe economic, social and environmental problems. Production systems are dismantled, productive assets and income sources are lost. People are reallocated to environments where their productive skills may be less applicable. Competition for resources is greater. Community structures and social works are weakened, kin groups are dispersed, and cultural identity, traditional authority and potential for mutual help are diminished. Okay, so अब आप हेडिंग डाल लीजिए रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन पहले. सो देखिए कौन कौन सी प्रॉब्लम को राइज मिलता है. पहला पॉइंट लिखिए, प्रोडक्शन सिस्टम्स आर डिसमेंटल्ड. राइट डाउन, प्रोडक्शन सिस्टम्स आर डिसमेंटल्ड. Point 2, productive assets and income sources are lost. So second point है productive, जो आपकी assets हैं और income है उनका भी loss बहुत होता है. Then we have third problem that people are reallocated to environment where their productive skills may be less applicable. So अब जहाँ पे वो मतलब रीएलोकेट वाली जो जगह होती है वहाँ पर उनकी जो स्किल्स है वो लेस एप्लीकेबल होती है, एंड मोर ओवर वहाँ पर जो कंपटीशन होता है फॉर रिसोर्सेज वो बहुत ज़्यादा होता है. देन कम्युनिटी स्ट्रक्चर, और जैसे हमारा एक जगह अगर हम हैं वहाँ पर हमारा एक कम्युनिटी वो बना होता है, स्ट्रक्चर बना होता है, एक हमारा सोशल नेटवर्क बना होता है, हमारा एक फ्रेंड सर्कल बना होता है, वो भी बहुत कहीं और शिफ्ट होके उसकी वजह से वीकन हो जाता है. फिर किन ग्रुप्स आर डिस्पर्स्ड, किन ग्रुप्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड. देन ये पढ़ लो, कल्चरल आइडेंटिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड पोटेंशियल फॉर म्यूचुअल हेल्प आर डिमिनिश्ड. तो जो ये कल्चरल आइडेंटिटी होती है एक इंसान की, कल्चरल आइडेंटिटी होती है,
ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी एंड पोटेंशियल, ये जो है ना डिमिनिश्ड हो जाता है, राइट। चलो अब हम देखते हैं ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आते हैं। डैम्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हमारा क्या क्या आता है गाइस, डैम्स आता है, डैम बन रहे हैं भाई, रिजर्वर बन रहा है, इंडस्ट्रियल प्लांट बन रहे हैं, है ना, देन इरिगेशन हो रही है, ड्रेनेज हो रही है, फिर लैंड की क्लियरेंस हो रही है भाई, लैंड क्लियर कर रहे हैं, मिनरल के लिए कर रहे हैं, मिनरल के लिए, फिर पोर्ट बनाना है, कोई भी हार्बर बनाना है। तो इस तरह की कुछ डेवलपमेंट्स के लिए रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन होती है कि डैम्स, रिजर्वर, इंडस्ट्रियल प्लांट, इरिगेशन, ड्रेनेज, लैंड क्लियरेंस, लेवलिंग, मिनरल डेवलपमेंट, पोर्ट एंड हार्बर डेवलपमेंट। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स फर्दर इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो मैंने पहले ही बता दिया कि इतने सारे इफ़ेक्ट्स देखो क्या होंगे। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला एकदम इफ़ेक्ट है हमारा लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ नोट करना है डिसरप्शन इन सोशल फैब्रिक, क्या होगा, डिसरप्शन इन सोशल फैब्रिक। नेक्स्ट, kinship system, marriages, social and cultural function, folk song, dances, activity vanish, their displacement। तो ये जो भी सोशल इवेंट्स होते हैं ये भी जो हैं वो वैनिश हो जाते हैं डिस्प्लेसमेंट के बाद। लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो जाती है, आइडेंटिटी का लॉस हो जाता है, और एक जो सोशल सर्कल होता है उसका भी बहुत लॉस होता है। देन the age-long indigenous knowledge which have been inherited and experienced by them about flora, fauna and their uses gets lost। तो जो भी हमारे पास वो एक इंडिजिनस नॉलेज होती है एक एरिया के फ्लोरा के बारे में, फौना कैसा है वहाँ का, वो सब उनके क्या यूजेस हैं वो सब भी लॉस्ट हो जाती है, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। मूविंग फर्दर, ओके, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। ओके, सो ये टॉपिक देखते हैं, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। ओके, सो एनवायरमेंटल मूवमेंट इज़ अ टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट दैट इन्वॉल्व्स एन अरे ऑफ इंडिविजुअल्स। सो बेसिकली अब हम सिलेबस में बात करते हैं कौन कौन से एनवायरमेंटल मूवमेंट है जो कम से कम आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 इज़ चिपको मूवमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं। देन नंबर 2 इज़ एपिको मूवमेंट जो आपको आना ही आना चाहिए, राइट। Then we have silent valley movement, silent valley movement, इनके आपको अलग से नोट ज़रूरी बनाने हैं, ठीक है, कम से कम 5 पॉइंट्स। देन बिश्नोई ऑफ राजस्थान, बिश्नोई ऑफ राजस्थान, एंड वी हैव फर्दर आई थिंक नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सो एटलीस्ट इतना आना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक एक करके हम फर्दर पढ़ते हैं। चिपको मूवमेंट। सो गाइस देखिए चिपको मूवमेंट, ये सीपी भट्ट जी हैं, ये गौरा देवी हैं और ये सुंदरलाल बहुगुणा है। Okay, Chipko movement, it is the tree hugging movement based on Gandhian philosophy of non-violence। So Chipko movement जो है ये Chipko movement किस लिए है, एक ये ट्री हगिंग मूवमेंट है। पॉइंट 1 क्या है, ट्री हगिंग मूवमेंट है और ये बेस्ड है नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट पे जो गांधी जी ने दिया था। रैपिड डिफॉरेस्टेशन जो देखी गई थी इन उत्तराखंड फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो हो क्या रहा था एक्चुअली, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, तो जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन नियर अलकनंदा रिवर, डिफॉरेस्टेशन नियर अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर पता है ना आपको। सो दैट रिजल्ट इन द मेजर फ्लड
इन 1970 में इतना डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से 1970 में एक बहुत ही मेजर फ्लड आ गया. So local villagers were unable to use the forest resource. Now request for the Soligram Swarajya Mandal to use the forest department. Now Simon company was allowed to cut the trees. Okay, let's study about the चिपको movement from here. So ये अच्छे से एक शॉर्ट नोट है और एक कंप्लीट आपको माइंड सेट कर देगा पिक्चर. Chipko movement was a non-violent agitation carried in 1973 for the protection and conservation of trees. The Bishnoi movement in Jodhpur was the inspiration when the Gaura Devi embraced the tree, as was done by Amrita Devi in 1730. So 1730 में जैसे अमृता देवी ने ट्रीज को प्रोटेक्ट किया था, सेम इंस्पिरेशन पे गौरा देवी ने भी जो है चिपको मूवमेंट करके ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया. चिपको मूवमेंट 1973 में स्टार्ट हुआ इन गोपेश्वर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, और जो द मूवमेंट है वो कैरिड हुए बाय टू लीडर्स, चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदर लाल बहुगुना ऑफ सिलारिया इन तेहरी रीजन. नाउ बर्थ ऑफ चिपको मूवमेंट वॉज डन बाय गोरा देवी एन एल्डरली वुमेन. She was the head of the village Mahilia Mangai Dal. Mobilized the village women for the movement when company men marched to cut the trees. So चिपको मूवमेंट को मोटिवेट किसने किया? एक गोरा देवी ने करा, और इन्होंने जो है वो विमेन को मोबिलाइज्ड करा. किसको? विलेज की विमेन को, कि वो प्रोटेक्ट करें ट्रीज को when the company men marched to cut trees. भाई जब वो कट करने आए ना तो तुम सबने अच्छे से करना है, ठीक है, ध्यान रखना है. अब जो दूसरे लीडर थे वो थे चंदी प्रसाद भट्ट. इनका क्या काम था चिपको मूवमेंट में? इन्होंने फोकस करा ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन. तो चंदी प्रसाद भट्ट जी का जो मेन फोकस था वो था कि हिमालयन माउंटेन्स को प्रोटेक्ट करना डिफॉरेस्टेशन से, राइट. और इन्होंने क्या किया? इन्होंने रैलीज ऑर्गेनाइज्ड की. रैलीज ऑर्गेनाइज्ड करी. सो इन्होंने रैली के थ्रू प्रोटेक्ट किया, रैली ऑर्गेनाइज करके. देन सुंदरलाल बहुगुना, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया ग्लोबली बाय क्रिएटिंग द अवेयरनेस. देखो देखने से लग रहा है कि अवेयरनेस क्रिएट करा होगा इन्होंने. सो सुंदरलाल बहुगुना का काम था अवेयरनेस को जनरेट करना डिफॉरेस्टेशन के लिए. एंड ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ तेहरी डैम. सो तेहरी डैम का कंस्ट्रक्शन रुकवाने वाले ये पहले पर्सन हैं. आई होप चिपको मूवमेंट का A to Z क्लियर हो गया. ठीक है, मूविंग फर्दर. Okay, next we talk about एपिको मूवमेंट in 1983. So place of occurrence is Uttara Kannada of Karnataka, led by Panduranga Hedge, inspired by Chipko movement. Men, women, children of Salkani hugged the trees in Kalasain forest. Local term of hugging in Kannadic is Apiko. So Apiko movement gave a birth to new awareness all over the southern India. So Apiko movement का क्या याद रखना है? Apiko मतलब हग करना को एपिको कहते हैं. तो ये कन्नड़ लैंग्वेज में एपिको को हम हग कहते हैं. और ये जो मूवमेंट है ये इट्स टेक्स प्लेस इन उत्तरा कन्नडा ऑफ कर्नाटका. एंड इसने जो इंस्पिरेशन ली
वो ली टेकन फ्रॉम, इंस्पिरेशन टेकन फ्रॉम चिपको, चिपको से इसने इंस्पिरेशन ली, राइट। एंड इस लेड बाय द पांडुरंगा हेज। आई होप आप ही को मोमेंट भी क्लियर हो गया होगा। चलो फर्दर मूव करते हैं। ओके, बिश्नोइज ऑफ राजस्थान। सो ईयर 1700s, प्लेस खेलजारली, मारवाड़ रीजन, राजस्थान स्टेट। बिश्नोई ऑफ राजस्थान से साफ पता चलता है राजस्थान की जगह है। और एक सेकेंड, ये जो इवेंट है प्लेस हुआ 1700 में। की पॉइंट्स, प्लेस है यहाँ का खेजरली, लिख लिया यहाँ तक खेजरली। रीजन कौन सा है? मारवाड़, मारवाड़ राजस्थान में मारवाड़ रीजन है, राइट। अमृता देवी की भी थोड़ी देर पहले बात की थी। गौरा देवी ने इंस्पिरेशन लिया था अमृता देवी से। तो अमृता देवी a female villager who could not bear to witness the destruction of her faith and village sacred trees. She hugged the trees and encouraged the others to do the same. 363 Bishnoi villagers were killed. 363 villagers got killed. इसी चक्कर में वो इस मूवमेंट के दौरान मारे भी गए। And the Bishnoi trees martyrs were influenced by the teachings of Guru Maharaj Jamji. ओके, सो ये जो है जो बिश्नोई ट्री मार्टर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचिंग ऑफ गुरु। अब किसी ना किसी का तो मतलब सीख दी होती है ना। तो वो जो गुरु जी हैं इनके गुरु जी का नाम है महाराज जाम्बजी, who founded the बिश्नोई फेथ, जिन्होंने बिश्नोई फेथ को फाउंड किया कौन से ईयर में? 1485 की बात है ये, 1485 की बात है। और उन्होंने फोर्थ प्रिंसिपल बताया कि फॉरबिडिंग हार्म टू एनिमल्स। और इनका जो मतलब प्रिंसिपल था बेसिकली कि जो हमारे एनिमल्स हैं, फॉरबिडिंग हार्म टू ट्रीज एंड एनिमल्स। ट्रीज और एनिमल्स को हार्म नहीं करना, मेन बात है। सो जो किंग था उस समय, who came to know about these events, rushed to village and apologized, ordering the soldiers to cease logging operations. Soon afterward, the Maharaja designated the Bishnoi state as protected area, forbidding harm to trees and animals. Legislation still exists today in the region. I hope clear हो गया ये basically. Okay. Moving towards next, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये जो है ये आंदोलन हमारा कहाँ का है? गुजरात की बात हो रही है। अब राजस्थान की बात हो गई, गुजरात की बात हो रही है। गुजरात में एक डैम है सरदार सरोवर डैम, नाम ज़रूर सुना होगा, ज़रूर, है ना। और नर्मदा सागर इन मध्य प्रदेश, MP। की पॉइंट्स, 450 feet in height of reservoir, 450 feet height of reservoir, 30 large dams, 135 medium dams। अब देख सकते हो कितने डैम है ना। and nearly 3000 small डैम, छोटे छोटे डैम। तो कितना प्रॉब्लम है यहाँ पे। और 40,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू सबमर्ज एंड 2,50,000 पीपल आर गोइंग टू बी डिस्प्लेस्ड। तो कम से कम 2 लाख पीपल जो है इस वजह से डिस्प्लेस हो गए हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। 30 लार्ज डैम, इतने मीडियम डैम, 3,000 स्मॉल डैम, 40,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू सबमर्ज एंड 2,50,000 पीपल टू बी डिस्प्लेस। तो देखो ये नर्मदा सागर है ना। तो ये देख रहे हो आप, हालत हो गई है इनकी।
सो वी विल भी एक मैं अलग से भी बना दूंगी मूवमेंट्स के लिए वीडियो। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये एक्ट है 2010 का, और इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। स्ट्रक्चर है चेयरपर्सन, 10 to 20 जुडिशियल मेंबर्स, एक्सपर्ट मेंबर्स। 5 ब्रांचेस हैं इसकी, दिल्ली में है, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल एंड पुणे। ठीक है, पावर्स देखो एनजीटी की। NGT has a power to hear all the civil cases relating to environmental issue and questions. So देखो ये एक्ट्स हैं, वाटर प्रिवेंशन एक्ट, एयर प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट, ये सारे एक्ट्स हैं कुछ NGT के। एंड हु कैन अप्रोच द NGT? So according to NGT Act, an aggrieved person can file a case in tribunal, who could be an individual, company and firm and association of persons like NGO. Even if registered or non-incorporated, a trustee or a local environment like municipal corporation, government body like State Pollution Control Board. Person need not directly affected by project or development in question, but could be any person who is interested in protecting and preserving environment. There is a time period within which he has to brought the case before the tribunal. Okay. सो जो भी एनवायरनमेंट की केयर करता है वो केस को रजिस्टर कर सकता है, और बाकी अथॉरिटीज़ लाइक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पर्सनस लाइक NGO, ये सब भी कर सकते हैं। ओके, लास्टली देखिए एनवायरमेंटल एथिक्स की बात करें तो ये कुछ इश्यूज, प्रिंसिपल, गाइडलाइन होती हैं जो ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए होते हैं, राइट। सो बेसिकली एनवायरमेंटल, आगे बढ़ते हैं हम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन ड्यू टू एफ्लुएंट स्मोक, वाटर स्केर्सिटी, लैंड डिग्रेडेशन। सो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन रिड्यूसिंग द एनर्जी रिसोर्स एंड वेस्ट प्रोडक्शन, रिसाइकल एंड रीयूज, soil degradation must be minimized, sustainable development by conservation and resources, over exploitation of natural resource must be defended, protection of biodiversity, reducing the population and increase in economic growth. So I hope ये क्लियर हो गया होगा। फटाफट देख लीजिए सोल्यूशन क्या है। रिड्यूसिंग द एनर्जी रिसोर्स, रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, सॉइल डिग्रेडेशन मस्ट बी मिनिमाइज्ड, रिड्यूस एनर्जी रिसोर्स, रिसाइकिल, सॉइल डिग्रेडेशन मिनिमाइज करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचो, प्रोटेक्शन करो बायोडाइवर्सिटी की, और पॉपुलेशन को कम करके इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दो। ठीक है, सो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो पता ही है, बहुत सारी होती हैं, लैंड डिग्रेडेशन, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, वाटर स्केर्सिटी, और ये उनके कुछ सोल्यूशन है। सो आई होप this lecture must be helpful for you. Thank you guys. So please like the video and share and subscribe to my channel.